Ladies and gentlemen, I welcome you to the Goela House of Finance. आज हमारे पास कौन है? A guest who was there earlier and you loved him was Shankar Sharma, sir. I truly treat him as a mentor. I've been stalking him for years. और फाइनली वो हमारे साथ दोबारा आए हैं और इतनी इंटरेस्टिंग बात हुई है. मार्केट्स गिर रहे हैं तो क्या करें, उनका किस चीज़ों में क्या टेक है और उनकी कहानियां और किस्से तो अलग लेवल पे फनी है और बहुत मजा आता है. तो क्यों वेट कर रहे हो यार, आ जाओ, शुरू कर रहे हैं. Okay, so ladies and gentlemen, today in the house we have Shankar Sharma, sir. Sir, thank you so much for coming to our podcast. Sir, last time हमारा जो podcast हुआ था, that was, I remember, 29th August 2021. So it's almost been a year. So Okay. how has this entire year been for you? What's new? आप किस चीज के लिए you're looking forward these days? Year has been great. Made a lot of money till November, December. By January, it looked very dangerous to me. I'd written an article in Times of India, which had said that this looks almost like, the year 2000. 2000, yes, sir, I read it. Yes. Yeah, and everything was so crazy, so mad. All kinds of rubbish companies were going for the IPOs, and the so-called tech companies, which are nothing but an app, nothing more than that. Were getting crazy valuations, were raising a lot of money, and then they were going to the public markets, and public markets stupidly were taking up these stocks at unheard of valuations, and the most of the money was going into secondary, basically offer for sale, by VC investors, because idiotic retail investors were, going out and subscribing and giving easy exits to the VCs. And I was sitting and thinking that I've seen this movie before. 20 साल Sir, I पहले. remember आपने आर्टिकल में बोला भी था, एक कंपनी कौन सी वेयर हाउसिंग की कंपनी थी. In that article you had mentioned, what was that company's name, sir? Webvan. yes. तो सर जैसे आपने बोला in the year 2000, in that time तो बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हुई on a overvalued basis. So do you think कि in this year itself from 2021 ऐसी कंपनीज लिस्ट हुई हैं which you see कि शायद 5 years down the line वो exist ना कर पाए या फिर they won't give as promising returns जैसा लोग सोच रहे हैं? नहीं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. And even if they exist, many of them will be as good as not existing. तो कई बार आप you're alive but you're as good as dead. So they are called zombie companies, right? That zombies are technically dead but they're walking around. So that's the definition of a zombie, right? And there can be a lot of zombie companies which can struggle along, pull along by hook or by crook, but they're as good as not existing at all. So I would not be surprised a number of companies, listed or unlisted, become zombie companies that technically they're alive but practically they're dead. So ऐसे कुछ key signs होते हैं जो which you notice in a company, आपको लगता है कि यार this has a probability of going towards a zombie company? ऐसे कुछ key signs which us investors can study? Oh, it's very simple. इसमें कोई rocket science नहीं है. देखो, इसमें दो तरीके से आप देखिए इसको. एक है कि इन कंपनियों में कोई edge है कि नहीं. कोई भी business में हमें देखना तो पड़ेगा कि whether you have an edge or not, right? Now, if I look at these companies, their edge has been a lot of easy capital. Okay. They have been nothing but mediocre companies which have been pumped up by a lot of, or rather mediocre businesses pumped up by a lot of, easy money because of, obviously a lot of gusher of, capital coming from the US. But intrinsically, the core economics of the businesses that most of these companies are in are loss-making by nature, or if they start to become profitable, they will do so only if you stop giving the crazy amounts of incentives that you offer for somebody to transact with you, right? If you look at payment companies, you look at delivery companies, they do their services at below their cost of manufacturing those services or products. True, sir, true. Right? So अब इस बिजनेस का क्या मतलब कि आपकी रेवेन्यू, मान लीजिए कि आपने एक ब्लू जैकेट पहनी हुई है, right? As far as I can see. What is the price of this blue jacket? Sir, must be 3,500, 4,000 ऐसी कुछ होगी. 4,000 rupees. If you start selling it for 300 rupees, it will definitely sell like crazy, huh? You will have demand from here till the moon. Yes. Correct? अब आप बोलोगे कि लोगों को मैं इतना एडिक्शन करा दूंगा to buying a blue jacket from you
that कि और कहीं से जाएंगे ही नहीं लेने के लिए, and over time I will start to increase my price to 4,000, right? आपका होप ये है ना, आपने ये कहानियां बेची हैं वीसीज को कि अभी 300 का बेच रहा हूं, आप 3700 रुपए का डिफरेंस है वो वीसी फंड करे, धीरे धीरे करके मैं 4000 बना दूंगा इसको, और उस दिन देखना मेरी प्रॉफिट आ जाएगी। और ये 300 की वैल्यूएशन आप मुझे आज ही 100 टाइम्स दे दो, तो ये कोई बिजनेस थोड़ा है। आप कोई भी चीज को 50% बिलो कॉस्ट बेचोगे तो आपको अनलिमिटेड डिमांड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मतलब क्यों नहीं मिलेगा साहब। आप आज मारुति की गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की आप 3 लाख रुपए में बेचना स्टार्ट कर दो, मारुति विल हैव ह्यूज सेल्स। 100%, 100%. This is all rubbish. It's all nonsense. This is all a story we have seen before. These end badly. They never end well. तो ये hundreds of startups में से एक आध दो बचेंगी, वो बचेंगी भी. And now the other point is, so many of them will not get capital. They'll go bust. Okay. Now, second aspect will be fine. They will become. Some of them might become profitable. तो एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, अभी रिसेंट लिस्टिंग है, उनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है. 25,000 करोड़ लॉस मेकिंग. उनका कहना है कि हम अब एबिटा पॉजिटिव नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे और 3 साल के बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, पैट आ जाएगा हमारा, राइट? इज दैट गुड और बैड? आप बताओ मेरे को. सर आई वुड से अगर मुझे करंटली इन्वेस्ट करना तो शायद मैं ना करूं, क्योंकि प्रॉमिस के ऊपर है, तो आई वुड से बैड. नहीं, मैं वो बात, मेरा सवाल वो नहीं. मेरा सवाल है, वो कह रहे 3 साल के बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा. तो वैसे तो बहुत अच्छा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग है. बहुत एक्साइटिंग. आज 25,000 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका मार्केट कैप, तो 250 पी पे 3 ईयर आउट अगर आया प्रॉफिट, तो 250 पे तो 3 ईयर आउट अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है. हाँ. तो फिर किस बात का आपको ये मल्टीपल मिलेगा? जिस दिन 100 करोड़ हो जाएगा उस दिन 20 टाइम दे देंगे आपको. और क्या जान लोगे क्या हमारे बच्चे की? तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए आपका. 25,000 तो आज ही दे रहा हूं मैं. हाँ सर, यू राइट. तो टेक्निकली अगर उसके बाद पूरा बढ़ जाएगा तो वैल्यूएशन आल्सो शुड इंक्रीज. वैल्यूएशन हैज टू करेक्ट. तो चाहे तो आप लॉस मेकिंग में बंद हो जाओगे, या वैल्यूएशन अगर आपकी, अगर एक बार पी मल्टीपल लग गया आपके ऊपर, तो 20, 30, 40 के ऊपर तो मिलेगा नहीं. 40 भी दे देता हूं तो 4,000 करोड़ रुपया होता है. आज ही 25,000 करोड़. योर स्टॉक हैज टू फॉल ईदर वे 70-80%, ईदर वे. चाहे आप, whether you continue to make losses or you continue to make profits. दिस इज समथिंग ना जो आई थिंक बहुत लोगों ने शायद लेस कैन. यू राइट. एक तो चीज हो गया कि अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ही नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 की चीज को 200 में बेच के तो प्रॉफिट हो जाएगा. सेकंड चीज, अगर बहुत इजी कैपिटल है तो चांसेस आर कि आउट ऑफ 10 शायद 1 या 2 कंपनीज ही स्टैंड इन द फ्यूचर. सर अब जैसे एक और ना मार्केट में हर जगह भी रह जाए तो बहुत है. सर अब जैसे मार्केट में एक चीज फैल गई है कि लोग बोलते हैं रिसेशन सब बोल रहे हैं, ठीक है, चीजें, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वॉर, एवरीवन नोज अबाउट इट. अब सर मार्केट्स में जब कोई न्यूज आती है, प्राइस में तो इमीडिएटली डिस्काउंट हो जाता है वो. सो डू वी इवन नीड टू कंसीडर दीज फैक्टर्स अगर मुझे आगे के लिए सोचने के, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आई कैन अज्यूम कि अभी तक डिस्काउंट हो गया होगा सब. That's not the way markets work. Markets are very short-term mechanisms. Please, one thing you please understand. Markets are not long-term pricing mechanisms. Markets always price what is visible and slightly beyond visible. मार्केट 3 साल सिनेरियो को प्राइस नहीं करता. मार्केट मैक्सिमम 12 महीने को प्राइस करता है, मैक्सिमम 6 महीने को प्राइस करता है. तो मार्केट इज प्राइसिंग इन टुडे सिनेरियो what is visible. But is the market pricing $200 oil? I'm not saying oil हो जाएगा $200. मैं ये नहीं कह रहा हूं. But can anybody say market is already priced 150 oil or 200 oil? Has market priced in US inflation of 10%? No. So if you assume, by the way, has market also priced in earnings contraction for a lot of companies beyond what analysts are estimating? Because remember, analysts are always going to be wrong. Always, 100% of the time. Analysts are never right. And why is that the case? Because no analyst, no broking firm, no asset manager gets paid to tell you anything which is negative for their own business.
And अगर वो कहेंगे कि aggregate earnings will not grow or that aggregate earnings may disappoint, it is bad for the business. Which is why पिछले 6 साल से हर साल 20% earnings growth की बात करते हैं brokers, और वो मार्च आते आते वो hardly 5% और या 0% पे रह जाता है. वो क्यों? वो बेवकूफ नहीं है. Because the nature of the business is that आपको ये फालतू की चीजें लिखनी पड़ेगी. You have to write nonsensical stories because that is what drives your business. These are True, sir. peddlers. They are not analysts. They are stock salesmen. आप फर्क समझिए साहब. They are stock salesmen. A salesman अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है ना. ये तो नहीं कहेगा कि बहुत ये प्रोडक्ट में बड़ी प्रॉब्लम है, आप ना लो. True, sir. True. So understand this. Market is pricing what is near-term visible scenario. But if the scenario changes further for the worst, you can't say worst is over. So all I'm saying is discounting is only for what is visible, not for what lies ahead. Let us hope this is the maximum pain that inflation gives us or oil gives us. If that is the case, market is well priced. But if a newer factor comes, market is not pricing that in. True. See what I'm saying? हाँ सर. सर तो बेसिकली एंड यू राइट सर कंप्लीटली, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 10% हो गया या क्रूड ऑयल कैन और भी क्रॉस लेवल्स क्रॉस हो गए तो हाँ दैट फैक्टर अलग से ही होगा. एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मार्केट्स एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ही है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बट सर गोइंग मोर ऑन द एनालिस्ट पार्ट, एंड इसलिए सर आई रियली एंजॉय योर ट्विटर, मुझे आपके ट्वीट्स बड़े एंजॉय करता हूँ मैं. तो इस पे अब जैसे आप बहुत बार ऐसी चीजें बोल देते हैं विच आर नॉट डिप्लोमेटिक इन नेचर, तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि आई शुडंट से दिस या इसका कुछ होगा? What's your कहते हैं reaction on this? आपका क्या है? No, so what should I not say? What that I have said? जैसे suppose I saw कि आपने रे डैलियो पे ट्वीट किया था कि रे डैलियो सर का ये है but returns नहीं आ रही, so it's all marketing. तो you are absolutely out there and people absolutely love it. But don't you feel sometimes कि no, but I don't express opinions. I express facts. If the facts are not to your liking, that's not the problem that I have. It's your problem. The fact is Ray Dalio is a below average investor. He's a great salesman, the great marketeer. But ultimately, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ not because of his marketing, but hopefully that he will give me returns. If his returns are below that of a US 10-year bond on a 15-year basis, then what's the point of my regarding him greatly? He's below average. That's the data. True, sir. True. This is something जो मैं आपसे जनरली काफी वो करता हूँ because you're completely to the point. अब सर एक और चीज है, जैसे कि अभी ना मेरा पर्सनल डाउट बहुत टाइम से रहा है. अब मार्केट्स टेक्निकली डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं, हायर द डिमांड लोअर सप्लाई, प्राइस ऊपर चली जाएगी, उल्टा तो प्राइस नीचे आ जाएगी. अब जो मेन सब कहते हैं बायर्स हैं मार्केट्स में, एक तो एफआईआईज एंड डीआईएस, द मेजर टू कंपोनेंट्स. अब मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया जब मैं डेटा ट्रैक कर रहा था कि 90% ऑफ द केसेस में व्हेन एफआईआईज आर बाइंग डीआईएस सेल 90% उल्टा ही होता है. और फ्रॉम 1-2 महीने ऐसे भी गए हैं फ्रॉम मार्च 2020 टू अक्टूबर 2021 कि मार्केट्स हैव गॉन अप इन दैट मंथ बट नेट सेल्स ऑफ एफआईआईज एंड डीआईएस दोनों नेगेटिव है और तभी मार्केट्स ऊपर चले गए. तो सर इसमें मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? यार भगवान के लिए once and for all buying always equals selling. True, sir. Is it possible you can buy something that is not sold? No. शॉपिंग कार्ट में कोई चीज लेते हो तो कोई बेच रहा है तभी तो लेते हो ना यार. तो ये क्यों बोल रहे कि एफआईआई ने बेचा तो मार्केट घटना चाहिए था? अरे भाई एफआईआई ने बेचा, किसी ने लिया भी ना सामने. Buying always equals selling, and buying and selling has no effect on price. Zero. Absolutely zero. I don't understand why people waste so much time on looking at this data. This data has zero logical, commonsensical, and evidentiary value or predictive value for where market will go. मैंने आज तक ये डेटा देखा ही नहीं है जब से एफआईआई के फिगर आ रहे 25 साल से, 25 क्या 28 साल से. It is useless. It is just bullshit data. Buying always equals selling. If FIIs have bought 1 lakh crore, somebody has sold 1 lakh crores. If FIIs have sold 1 lakh crore, somebody has bought 1 lakh crores. Awesome. You're right. अब मार्केट घटेगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट घटता है तो हम देखेंगे
कि अच्छा FII sold 1 lakh crores or 1000 crores or whatever some figure, hence market fell. But मैं बोलते हैं भाई साहब, वो उसने 1000, मुझे तो 1000 किसी ने लिया भी ना, तो मैं इसको उल्टा क्यों नहीं देख रहा, किसी ने 1000 लिया yet market fell. Yes sir, completely true. भाई हम फैक्ट्स पे चलेंगे, हम कहानियों पे नहीं जाएंगे. हम we are not animals or nor are we babies. We are educated adults and our job as investment professionals is to look at data and data. वरना ये मनगढ़ंत कहानियां, ये बिल्कुल ओल्ड वाइफ्स टेल्स, गांव के लेवल की बात, ये जो नुक्कड़ पे गपशप, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इट्स ऑल नॉइज. एंड लाइफ में जितना नॉइज कम करेंगे उतनी आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग आएगी. So personally, how do you make sure, क्योंकि नॉइस तो भरा हुआ है, यू राइट, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप इन सबको अवॉइड करके जस्ट स्टे ऑन द डेटा? आपका कोई ऐसा रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं या कोई प्रैक्टिस जो आप हमेशा करते हैं? नहीं, पहली बात, मैं न्यूज पढ़ता ही नहीं हूं. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूज, सो आई डोंट रीड मच न्यूज. I get a synopsis of news from my analyst, which is only relevant. I get only, like inflation data या cement sales data, auto data. मैंने को वही चाहिए. मुझे RBI governor's view is that inflation will cool off in fourth quarter of 2022, और government of India's view is India will grow 10%, या Fed का view है कि inflation is transitory. मैं बोलता हूँ मेरे को किसी के view में कोई interest नहीं है बॉस. Don't ever give me views. Just give me the data. I will make my own views. Very strong. Simple as that. और अगर मैं अपना व्यू नहीं बना सकता हूं, देन मुझे इस बिजनेस में रहने का कोई हक नहीं. अगर मुझे आपके व्यू को बोरो करके अपना व्यू बनाना है, तो फिर मैंने क्या हासिल किया अपने 30-35 साल में बॉस? फिर my brain is not my brain. My brain is only a mosaic constructed out of 100 different people's brains. True sir. True. So I only look at data and then I form my views based on that data. I do not discuss markets with anybody, not even my best friends. I don't discuss trends with anybody. I don't discuss anything with anybody. When I meet my friends, I have hundreds of things to discuss. I never discuss market. Never, ever. वेरी इंटरेस्टिंग सर. अब जैसे कोई नया इन्वेस्टर है, अब जैसे ना, सो ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है आपका, दैट अवॉइड व्यूज, गो ऑन डेटा. अब सपोज समबडी इज 2-3 years इन द मार्केट्स. अब होता क्या है कि अब अगर कोई आदमी एक इन्वेस्टर को फॉलो करेगा, फिर कोई और, अब सबके वही जो आपने बोला व्यूज बहुत डिफरेंट है, एंड वो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं मैं. तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू दैट इन्वेस्टर कि हाउ टू स्टार्ट डेवलपिंग योर व्यू यूजिंग द डेटा? स्कूल में आप एग्जाम पास करके आए, जो भी इन्वेस्टर है स्कूल तो पास किया ना कम से कम. तो स्कूल में पास किया तो एग्जाम खुद ही लिखा ना, कि बगल वाले से कॉपी करके पास कर गए. यस सर. यार कमाल की बात है. साला टीचर ने लेसन सबको पढ़ाया, किताबें सबको दी, माँ पिता ने स्कूल सबको भेजा, फीस सबका पे किया, और टेस्ट पास करने के लिए तो खुद ही करना पड़ा ना. यस सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये थोड़े कि 5 लोगों का टेस्ट पेपर भाई लब लो दे दो मेरे को, मैं कॉपी कर लेता हूँ. तो फिर जब स्कूल में ये तालीम मिली हमको, थ्रू कॉलेज में मिला, MBA मिला, इंजीनियरिंग मिला, कि भाई चोरी से तुम फेल करोगे या पकड़े जाओगे या गलत प्रैक्टिस है, तो लाइफ में आते के साथ क्यों चोरी करने लगे हम? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. वहां भी वही चीज रखे. आपको लेसन दिया जा रहा है डेली, आप लेसन पढ़े, होमवर्क करें, क्लास वर्क करें, समझें. मार्केट इज अ टीचर, मार्केट इज टीचिंग यू मेनी थिंग्स, लर्न इट एंड देन राइट द पेपर योरसेल्फ. यस सर, यस सर, मेक्स लॉट ऑफ सेंस. कि हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में लगे, बट टिल द पॉइंट जो आपका वही जो आपको पॉइंट था, दैट अगर आप व्यू ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर हो सकता है कि मार्केट्स आपके लिए जगह ही नहीं. अगर आप डेटा को एनालाइज करके यू आर नॉट एबल टू सेट योर स्टैंड्स, तो कुड बी प्लेस कि मार्केट आपके लिए जगह ही नहीं. वेरी ट्रू सर. फॉरगेट मार्केट. नहीं तो फिर तो आप तो स्कूल पास करने लायक भी नहीं हो. yes, sir. Why are you blaming market? फिर तो स्कूल में क्या, इसका मतलब आपने चोरी करके पास किया स्कूल. Very true, sir. It's the truth. जो आप बोल रहे हो, it's absolute the hard truth. And I think truth ही चाहिए, जो आज सबको ही चाहिए truth. सर अब जैसे ना आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, और कि कोई इन्वेस्टर, now just imagine sir, if some investor comes to you and again 3-4 years into the market he says मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है, कुछ टेक्निकल से लिया था, कुछ न्यूज थी, कुछ फ्रेंड ने बोल दिया, अब मार्केट नीचे जा रहा है, मैं क्या करूं?
So what would be your advice to that person, or what would be your thing that you want to tell that guy? My advice always is that everything has to start with a clean slate. Okay? That if a portfolio is given to me, I will make sure that whatever is retained has to be retained because of facts which are supporting that. If nothing has to be retained, then nothing should be retained. It doesn't mean कि अब यार इसी के इर्द गिर्द कुछ बता दो मेरे को. ऐसा नहीं होता है. आपके पास एक फॉल्टी बिल्डिंग है, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो आप वो इतना ही कह सकता है कि देखो सर, अगर आप ये चाहते हो कि इस बिल्डिंग को मैं मॉडिफाई कर दूं छोटा मोटा तो वो कर दूंगा, लेकिन आपको फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो कि आपको एक घर में रह के मिलना चाहिए. उसके लिए वी हैव टू रेज एवरीथिंग टू द ग्राउंड एंड बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग और हाउस और व्हाटएवर इट इज. करेक्ट? बिकॉज जोड़ तोड़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर will never give you good results. Never ever. So I always say that maybe some stocks are good, we'll keep it. But if nothing is good, everything has to be exited and a fresh portfolio has to be made as of today. And it's not only other people. I do that to my own portfolio also. Okay. आपके पास कूड़ा इकट्ठा होता है ओवर टाइम. इन्वेस्टिंग में भी होता है, डे टू डे लाइफ में भी होता है. आपको पीरियोडिकली क्लीन करना पड़ेगा अपने कूड़े को. तो आपको नजर आएगा पोर्टफोलियो में कुछ तो हीरे हैं, लेकिन कुछ अपने पास पीतल भी पड़े हुए हैं. उनको निकालो यार. So why other people? I have to practice that myself, and I do that. Yeah, I have to do that. I'm a professional. Sir, you've put it so well. बताओ, इसलिए there's one thing I think that everyone looks up to you. आप हर चीज को इतने आसान शब्दों में समझाते हैं. जैसे एक आपका जो लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी, आई थिंक वो मार्केट्स को इतना ब्यूटिफुली समझा देता है. एंड दिस समथिंग कि कोई भी आदमी उसको रिलेट करता है. और सेम जो आपने बोला कि लाइफ में भी और पोर्टफोलियो में भी विद टाइम कचरा इकट्ठा हो जाता है, इसको साफ करने में कुछ है नहीं, एंड यू हैव टू क्लीन इट. सर, तो अकॉर्डिंग टू योर लेक रिटर्न्स, सबसे पहले आप हमें ऑडियंस को थोड़ा बता सकते हैं कि ये थ्योरी है क्या, और ये आपकी ही थ्योरी है, एंड इस थ्योरी के हिसाब से वेयर डू यू सी द मार्केट्स इन द कमिंग 2-3 क्वार्टर्स? राइट. तो पहले इसके बेसिक्स में चलते हैं. ये थ्योरी मैंने करीब करीब 20 साल पहले बनाई थी, 20-22 साल पहले. और इस थ्योरी के पीछे मैंने बहुत सोचा, बहुत साइकिल्स स्टडी किया, काफी एसेट क्लासेस स्टडी किया, did a lot of long term statistical analysis, and उससे ये पता चला कि हर एसेट क्लास के कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. ओके? जस्ट एज एवरी क्रिकेट प्लेयर हैज एन एवरेज. करेक्ट? क्रिकेट तो हम सब समझते हैं कि इस प्लेयर का अगर एवरेज आफ्टर लेट्स से 50 टेस्ट is about 50 or 48 or 52, something like that, then it is very likely that even for the next 50 tests he will cluster around this average. उस एवरेज से बहुत बड़ा डिविएशन, अनलेस कि उसकी आंखें खराब हो गई या इंजरी हो गया, वो सब हो जाए छोड़ दो, बट नॉर्मल वे में he will cluster around this kind of a range. करेक्ट? अगर पहले उसके फेज में 25 का ही एवरेज था, पहली बार तो टीम में रहेगा नहीं. अगर रह भी गया 30 के एवरेज पे फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं हो सकता कि अगले 50 टेस्ट में वो सडनली 70 का एवरेज कर देगा. मोस्ट पीपल क्लस्टर अराउंड देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ देयर लाइफ. ओके? सो मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि एसेट क्लासेस की क्या क्लस्टरिंग है. तो देखा जैसे इंडियन एसेट्स टिपिकली इक्विटी एसेट्स रिटर्न यू 15% CAGR. ओके? over a 30 year 35 year data, 40 year data. तो एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि चलो ये this is a reasonable estimate, could be 13, could be 15, but around this figure. Okay, US equities return anything between 7 to 9% on a long term basis. Okay, and then there are every other asset class. वहां से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं इसको अगर एक लेक की तरह से देखूं कि हर एसेट क्लास का रिटर्न मैं एक लेक की तरह से देखना स्टार्ट करूं. एक लेक है जिसमें एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है. करेक्ट? उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है, लेक की कैपेसिटी बढ़ नहीं सकती. करेक्ट? ट्रू. लेक में जितना पानी था, बिकॉज अनलाइक river which can expand, do flooding and all that, lakes typically remain more or less in the same let's say capacity.
सो true. इफ वी गो विद दैट, तो मैंने कहा हर एसेट क्लास की रिटर्न, लॉन्ग टर्म रिटर्न एक लेक है, करेक्ट। और जब उस लेक में पानी बहुत कम हो जाता है तो लेक नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भरना स्टार्ट करेगा, और वो भरते 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 एक पॉइंट पे जाएगा जहां पर कि वो इतना पानी हो जाएगा कि वो होल्ड नहीं कर सकता, एंड वो ओवरफ्लो होता है, फ्लडिंग कर देता है नेबरिंग एरियाज में, एंड देन द वाटर लेवल अगेन कम्स डाउन। मैंने मार्केट रिटर्न्स को भी इस लेक की तरह देखा कि आपकी इंडियन लेक की कैपेसिटी 15% है, करेक्ट। हमारे लेक ऑफ रिटर्न्स ऑफ इंडियन इक्विटीज हैज 15% होल्डिंग कैपेसिटी. True, Now, sir. if the last 5-10 years have given us only 4-5%, actually, if you see, that is what it has given us. Last के 2.5 साल छोड़ दो, आप 2010 से देखिए, 8 से देखिए, 9 से देखिए, तो अपने रिटर्न्स एक्चुअली स्पीकिंग आर वेल बिलो नॉर्मल रिटर्न्स ऑफ आवर ओन हिस्ट्री. हमारी 6% 7% के आसपास एवरेजिंग हुई है. इसका मतलब क्या है कि हमारे लेक का पानी आधा ही भरा है अभी. हमारे लेक की कैपेसिटी 15% की है, हमारी लेक पे अभी 5-7-8% की ही मतलब जो फिलिंग हुई है. इसका मतलब देयर इज प्लेंटी ऑफ हेडरूम अवेलेबल फॉर आवर लेक टू गो फिलिंग अप. हाउएवर इट डज नॉट मीन कि देयर आर इन हर जैसे डैम में देखे तो एस्केप वॉल्व्स होते हैं थोड़े सेफ्टी के लिए. ये जो आप करंट डाउनटर्न देखते हैं, मैं इसको एक सेफ्टी वॉल्व देखता हूं कि थोड़ा जो एक्सेस वाटर फास्ट अगर फिलअप करता है तो वो प्रेशर कुकर में जैसे आप देखें तो वो थोड़ी सीटी निकालते हैं. तो ये थोड़ी सीटी निकल रही है, प्रेशर कुकर बर्स्ट नहीं होने वाला है, ये थोड़ी टेम्पररी प्रेशर को रिलीज करता है. ये जो 15% डिक्लाइन आप देख रहे हो, ये उस टेम्पररी प्रेशर को रिलीज कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि लेक भर गया. लेक तब भरेगा अगर ऑन अ 10-year बेसिस वी कंपाउंड एट 20%. इसका मतलब ये अगले 2 साल में अगर अपनी मार्केट डबल ट्रिपल हो जाती है, दैट मींस वी हैव ओवरफ्लोड एंड ओवरशॉट आवर कैपेसिटी, एंड देन देयर विल बी अ जेन्युइन बेयर मार्केट. आई कैन गारंटी यू दैट. राइट नाउ देयर इज सो मच एक्सेस कैपेसिटी एंड हेडरूम इन द लेक कि फ्लडिंग का भी कोई चांस नहीं है. यस, टेम्पररी ओवरफ्लोज विल बी एग्जिटेड एज इट हैज बीन एग्जिटेड, बिकॉज बहुत वो उफान आ जाता है, बबल आ जाता है, फ्रॉथ आ जाता है. आपके किचन में जाके देखो, सेम phenomenon happens. True. But it is not a bursting of the dam or the lake. That is what lake of returns is. And based on that, it is my belief that Indian equities in particular are looking at the next, at least I don't want to look 5 years, but 1-2 years look very, very, very good without any doubt. Because there is so much headroom available for us to grow. And so you're right, basically शायद ये हो रहा है कि a lot of people are only focusing for the past 2 years but not seeing कि अगर मैं 2010 से देखूंगा तो जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हुई नहीं है. And you're absolutely right, sir. आप देखो, अगर जाके एक सिंपल आंकड़ा देता हूं, 21,000 का सेंसेक्स होता था जनवरी 2008 में. आज है कितना, 50-55 हजार है. नियरली 13 years. 13 years में it is up barely 2.5 times. It is nothing. It is nothing at all. हम कोविड के लो से पकड़ते हैं वो 27,000 होके अब 54,000 हो गया, बट वो तो एक आर्टिफिशियल लो था. थोड़ा पीछे हम स्क्रीन को थोड़ा वाइड करें तो देखते हैं यार ये तो कुछ था ही नहीं. कोविड के पहले 37,000 का था, वो 37,000 वाला आज की डेट में 54,000 हुआ है. एंड वही 37,000 उसके 12 साल पहले 21,000 का था. अभी 12 साल में अगर 60% रिटर्न आया तो मोटा मोटी 3% की कंपाउंडिंग हुई आपके मार्केट की, तो कुछ भी नहीं है, बिलो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट है साहब. Therefore, that is the way to look at how much water is there in the lake of returns for India. And based on this, you can see the water is still very, very low. Yes, sir. So it's making so much sense क्योंकि हाँ अभी जो क्लियरली बात हो रही है एकदम प्योर डेटा फैक्ट से बात हो रही है. एंड यू राइट, अकॉर्डिंग टू डेटा फैक्ट्स अभी बहुत लेक को तो भरना काफी बाकी है अभी. Yes, sir. So sir, आपके हिसाब से where do you see कि ये कब तक ये करेक्शन, अगर करेक्शन बोल सके इसको, तो कब तक ये फेज रहेगा इन योर ओपिनियन?
मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन विल स्टार्ट टू गेट ऑप्टिकली रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 2 quarters. द रीजन इज वेरी सिंपल कि इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन is nothing but a rate of change. When people say inflation has fallen, doesn't mean prices have fallen. It only means that the rate at which they were increasing has come down. Yeah. तो ये एक बहुत बड़ा झोल है एक्चुअली स्पीकिंग, कि हमें कन्विंस किया जाता है कि इन्फ्लेशन कम हो गया. अरे भाई, इन्फ्लेशन कम हो गया का मतलब नहीं कि 100 की चीज 90 पे आ गई. ये हो गया कि 100 की चीज 110 जाने के बजाय अब 102 पे है, 104 102 पे. पे, yes. लेकिन वो थी चीज 90 पे या 80 पे. ये नहीं बताते सेंट्रल बैंकर्स हमें. ये बताएंगे तो लोग रोड पे नारे लगाएंगे. Yes. Yes. तो Yes. it is all massaging our, because people are generally not analytical. बोले inflation has come down. That doesn't mean prices have come down. It is only the rate at which they were increasing has come down. So मैं अगर उस चीज को ही आगे लेके चलता हूं तो मुझे लगता है कि प्राइसेस की जो बेस अब हाई हो गई है. अब उस हाई बेस से नेक्स्ट दो क्वार्टर में वहां से बढ़ने की उम्मीद मुझे कम है. बढ़ेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा. तो वहां पर डेटा आने लगेगा कि इन्फ्लेशन हैज कूल्ड डाउन टू ओनली 3%. Why? Not because prices have fallen. It is only that the base effect has kicked in. That's all it is. सर एक्चुअली यू राइट, क्योंकि बहुत बार ना शायद लोगों को ये लगता है कि चलो इन्फ्लेशन नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, दैट्स अ फिनोमेनन, वो इसका रेट विल कंप्लीटली चेंज. एंड से एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है इन द मीडिया और आर्टिकल्स, तो वैसा लोगों को लगता है. सर इट इज वन थिंग, इफ दैट वन थिंग दैट यू कुड चेंज इन द फाइनेंस मीडिया, पूरा आप चेंज कर सकते थे, व्हाट वुड दैट वन थिंग बी? In the media, many things can be changed. In particular, there should be room for a nuanced and balanced thinking. Indian market की बात मैं अगर करूं तो इंडिया मीडिया और इंडियन टेलीविजन, इंडियन पेपर, इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन फंड मैनेजर्स की एक ही धारणा है कि इट्स ओनली, यू हैव टू टॉक ओनली बुलिश, एंड इफ यू टॉक अ बैलेंस्ड व्यू यू आर बेरिश. अगर आप अमेरिका देख लो, वहां पर आपको बहुत महान इन्वेस्टर्स, मंजे इन्वेस्टर्स they will give a balanced view. You will never see Indian mutual fund managers, Indian wealth managers, Indian कि नहीं जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पाकिस्तान इंडिया वॉर भी हो जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, चाइना हम पर चढ़ाई करेगा हम कर देंगे, श्रीलंका अगर खराब होगा तो इंडिया. मतलब कोई भी चीज में कोई थिंकिंग की ये नहीं कि यार एक तराजू है मार्केट, हमको गुड बैड सबको वे करना पड़ेगा. यहाँ के तराजू में एक साइड में सब कुछ है, दूसरे साइड कुछ है ही नहीं. This I find a very childish and immature way of looking at market. There are always pros and cons to any investing decision you make. ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो परफेक्ट है, ऐसी कोई मार्केट सिचुएशन नहीं जो परफेक्ट है. There are goods and bads and we see whether it has more good and less bad. But to say nothing is bad, that means कि आप फिर वो क्या बोलते हैं CBD आजकल चल रहा है ना, आप सीबीडी का सेवन करते हैं. ओ सर, मतलब हाँ यू राइट, क्योंकि जनरली जब भी मैं ऐसे बड़े एएमसीज को देखता हूँ तो जनरल परसेप्शन इज ऑलवेज बुलिश ऑन द मार्केट्स, बिकॉज आई थिंक सर क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा प्रोज एंड कॉन्स जैसे होता ही है, एवरीवन इज जस्ट फिक्सेटेड ऑन द प्रोज, एंड उसका शायद मेन रीजन यही है बिकॉज दे वांट टू एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट. ट्रू सर. सर अब इन द कमिंग फ्यूचर, अब जैसे एक दो सेक्टर्स हैं जो हमारी ऑडियंस ने पूछे हैं आपसे पूछने के लिए, कि एक तो है रियल एस्टेट. जैसे अभी रिसेंटली रॉयटर्स का रिपोर्ट आई थी कि इन द कमिंग 5 years रियल एस्टेट कैन बी रियली अप एंड कमिंग इन इंडिया स्पेसिफिकली. तो आपका उनको कैसे मालूम है? सर उनका जो मैंने पढ़ा था उनका डेटा ये बोला था कि द रेंटल यील्ड्स बढ़ गई हैं 10-20% इन द मेट्रोपॉलिटन्स, और हाइब्रिड वर्किंग कल्चर आ गया है, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड अगेन, जो उनका डेटा था. Again, this is a point of view. It may be so, it may not be so. So रॉयटर्स बोले तो रॉयटर्स को थोड़े भगवान है यार. दूसरी बात मैं बोलता हूँ, कोई भी अपना व्यू देता है ना, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ कि तुमने कितने पैसे डाले इस व्यू के ऊपर. वो खाली फुकट बोल देने से थोड़े हो जाता है व्यू यार. पैसे लगाओ ना, हम तो हमारा जो व्यू उस पर पैसे लगे होते हैं बॉस. ट्रू. जो आदमी पैसा लगाता है उसके व्यू की बात सुनता हूँ भाई. बाकी है रॉयटर्स और आरबीआई और सेंट्रल बैंक और फेडरल बैंक और
फेडरल रिजर्व फालतू की बातें, इनका क्या स्किन इन द गेम है यार, बोल दो कुछ भी बोलो, बाद में व्यू चेंज कर दो, तो लीव रॉयटर्स एंड ऑल ट्रू असाइड। सर। हाँ, और बोलते हैं ना कि नाइट फ्रैंक का ये व्यू, रियल एस्टेट का भाव ये बढ़ेगा, नाइट फ्रैंक ने कितने पैसे डाले रियल एस्टेट में, ये दिखा दो मेरे को। अगर 2-5 हजार करोड़ उन्होंने माल लिया हुआ होगा तब तो मैं फिर भी सुनूं उनकी बात। So leave that aside. I mean, my view is real estate in India is very patchy. It is not to say it is bad or good. It depends on what you're talking about. I talk to real estate people. I get a very mixed picture. And आज ही in fact data आया है. Data. I'm again talking data, not ये. कि new home sales in 8 or 9 metros or something has hit a 9-year high. वो 9-year high है 1,58,000 यूनिट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। लेकिन ये 9 ईयर का फिगर पकड़ा हुआ है भाई, 9 ईयर्स। अगर आप 2013 का फिगर देखो सेम हाफ का, तो वो 1,85,000 यूनिट था। तो 2013 का फिगर भी आज नहीं पहुंचा भाई साहब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सेल्स। ट्रू। पॉपुलेशन कहां से कहां बढ़ गया, इकोनॉमी कहां से कहां बढ़ गई, लेकिन घर आज कम बिके हैं एज कंपेयर टू 2013 सेम हाफ। ट्रू सर, हाँ एकदम लॉजिकल बात है, ट्रू। So real estate is not my business. I don't invest in it. So I really don't have a big call. I know broadly that it's very patchy. Smaller towns report better numbers. I don't think Bombay, Delhi are reporting very good numbers. But again, that's not my business. ठीक है सर, perfect. Sir, so in the stock market, which sectors do you feel interest you in the coming quarters, और जिसमें आपके हिसाब से investors can take interest in? कोई specific sector ऐसे? सेक्टर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि स्मॉल कैप्स आई थिंक लुक फैंटास्टिक। आई थिंक लार्ज कैप्स में आई डाउट इफ यू आर गोइंग टू मेक सब्सटैंशियल मनी, बट इन स्मॉल कैप्स आई थिंक द अमाउंट ऑफ मनी यू विल मेक इन नेक्स्ट 3 to 5 years is fantastic. They are going to be difficult areas to invest in. There's obviously more risk. There are smaller companies, there are illiquid stocks. बट थोड़ा मेहनत अगर करें तो आई थिंक 10-20 बड़ी अच्छी कंपनियां वहां पर नजर आएंगी, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड एरिया टू बी इन। सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक चीज जो आप स्मॉल कैप कंपनी देखते हो, या कुछ एक्स्ट्रा जो आप लार्ज कैप से ज्यादा देखते हो, या एनीथिंग? स्मॉल कैप्स को ज्यादा देखना पड़ता है, बारीकियों में जाना पड़ता है, बिकॉज स्मॉल कैप्स के मैनेजमेंट्स अनप्रोवन है, अनटेस्टेड है, उनके एथिक्स नहीं मालूम है। लार्ज कैप में एटलीस्ट वी नो गुड एंड बैड एंड अगलीज ऑफ द लार्ज कैप्स, सो एटलीस्ट दे आर नोन डेविल्स। स्मॉल कैप्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेस जीरो। हर नई कंपनी को फिर नए सिरे से उस बंदे को समझना होता है, मोर देन द बिजनेस, उसकी नीयत क्या है, एंड दोज थिंग्स टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। नीयत तो बस मीटिंग करो, एक बार कॉफी पियो, सारे सबकी नीयत अच्छी लगती है। ये तो 2-4-6 महीने, साल 2 साल के बाद मालूम चलता है इसकी नीयत अच्छी थी कि नहीं थी। So it is a very difficult area of the market, no doubt, but in my view that is the area which will make us tremendous money in the next couple of years. ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सो सर, इफ देयर इज अगेन, अगर वो इन्वेस्टर जो 3-4 years spent in the markets, he is trying to track small case, अब जैसे आपने बोला सर वो नियत की बात, which is very true, एंड ये भी बहुत ट्रू है कि लार्ज के कंपनीज आर अ नोन डेविल, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो द हिस्ट्री। सो हाउ वुड यू एडवाइज हिम कि कैसे उसकी टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़े, कैसे उस पर रिसर्च करे, कुछ की पॉइंट्स जो वो देखे? Well, you can run a lot of screeners. आज की डेट में बहुत स्क्रीनर्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं। स्क्रीनर रन करिए, उसमें सारे उनके बैलेंस शीट डेटा निकालिए, पीएनएल डेटा निकालिए, डेल्टा देखिए ऑफ Q-on-Q, sequentials, margins, look at their the shareholding patterns. A lot of data is freely available. And then, of course, I mean, I'm not saying this is easy, but if you don't have that much time, I suggest go and buy a bunch of small cap mutual funds, which is a very good way to go. Definitely, sir. Definitely. Chalice, sir, thank you so much for all your time. It was a pleasure to have you. And हमेशा बताओ, whenever I talk to you, like तो मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, and the fact कि आप इतनी सारी चीजें इतनी आसान शब्दों में समझाते हो ना, that just मतलब boggles my mind कि कैसे you break it down to so simply. And so thank you so much for your time. It was a pleasure to have you. Thank you. Likewise. All the very best. Thank you, sir. Bye bye.